A very good afternoon to all of you. This is Abhilasha Nahata, your social science teacher. So, class, today we all are going to continue our chapter number 3, that is ruling the countryside. And today we will discuss about crops for Europe. Okay, so till now we talked about agriculture system. We talked about how Britishers generated revenue for their expenses. Okay, they introduced some of the systems through which they can generate revenue permanently. They can generate revenue, they can generate the flow of revenue. Okay, now crops for Europe. Why Britishers thought crops are important for them? So now the British also realized that the countryside could not only yield revenue. Yield means to produce. It could also grow the crops that Europe required. By the late 18th century, the company was trying its best to expand the cultivation of opium and indigo. Opium, opium is a crop. You can say अफीम. I believe अफीम आप सबने सुना होगा. एक ड्रग है, ठीक है. You can say एक ड्रग ही है. तो opium is the flower through which this drug is made. Okay, so now opium and indigo. In the century and a half that followed, the British persuaded or forced cultivators in various parts of India to produce other crops: jute in Bengal, tea in Assam, sugarcane in United Provinces, now Uttar Pradesh, wheat in Punjab, cotton in Maharashtra and Punjab, rice in Madras. So now Britishers thought that they very well aware about the situation of India, especially about the villagers. Now they thought countryside or villages could not only yield revenue, they can also yield, or they can also grow the crops that Europe wanted, that Europe required. Whatever the requirement of Europe is there, they can grow that crops. And by the late 18th century, like they trying their best to expand the cultivation, especially expand the cultivation of opium, indigo, rice, you can say wheat, cotton, jute, tea, sugarcane, etc. Whatever their requirement was, because यूरोप जो है एक वहाँ पे क्रॉप्स वगैरह एग्रीकल्चर कॉन्टिनेंट नहीं है इतना, बहुत ही लिमिटेड जो है एग्रीकल्चर वहाँ पे होता है. तो इंडिया इज वेरी वेल नोन फॉर इट्स एग्रीकल्चर. ठीक है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के एग्रीकल्चर यहाँ पे फॉलो होते हैं, बहुत सारे क्रॉप्स भी यहाँ पे होते हैं. तो यूरोपियंस ने, अब ब्रिटिशर्स ने क्या किया, जो भी क्रॉप्स यूरोप में रिक्वायर्ड थी उन क्रॉप्स को इंडिया में ग्रो करना स्टार्ट कर दिया. उन्होंने विलेजर्स को, उन्होंने एग्रीकल्चरिस्ट को, फार्मर्स को इनकरेज किया कि जो हम आपको अच्छा पैसा देंगे, वी विल गिव यू अ गुड अमाउंट ऑफ मनी to you if you will produce this crop, especially for indigo and opium. They forced the villagers, because both the crops are not edible crops. That's why they forced them to grow opium or indigo. Okay, so now how was this done? The British used a variety of methods to expand the cultivation of crops that they needed. Let us take a closer look at the story of one such crop, one such method of production. In this book, in this chapter, we will talk about only one crop, that is indigo. Indigo is a color, you know कि हमारे रेनबो में भी इंडिगो आपने सुना होगा कलर है. ठीक है, इंडिगो ब्लूइश कलर होता है. ठीक है, ये देखो, ये सारे ब्लू कलर जो दिख रहे हो ना, ब्लू कलर हो. आई होप आपने नील देखी होगी, जो कपड़े में हम जब क्लोथ्स में, व्हाइट क्लोथ्स में नील देते हैं. ठीक है, ब्लू कलर का होता है. और आपने कोई ना कोई एड देखा होगा, उजाला का एड देखा होगा, जो नील के लिए काफी फेमस है. तो वो जो कलर है नील का, उसी को हम इंडिगो बोलते हैं. ठीक है, उसी से नील जो है ये इंडिगो क्रॉप से ही बनती है.
ठीक है. So now in this chapter we will talk about it. We will talk about how they started growing this crop indigo, and क्या क्या methods उन्होंने use किए, production कैसा होता था, we will talk about it. So does color have a history? इंडिगो क्या है? इंडिगो एक कलर है, और इंडिगो से नील ब्लूइश कलर बनता है. ब्लूइश के जितने भी शेड्स हैं वो कलर्स बनते थे. तो ऑब्वियसली कलर टू हैव अ हिस्ट्री. Figure 5 and 6 are two images of cotton prints. The image on the left, that is figure 5, shows a kalamkari print created by weavers of Andhra Pradesh in India. कलमकारी प्रिंट 20th सेंचुरी में इंडिया के ही जो वीवर्स हैं, आंध्र प्रदेश के वीवर्स हैं, उन्होंने ये प्रिंट जो है डेवलप किया, और इस प्रिंट में उन्होंने इंडिगो कलर का क्या किया है, यूज किया है. On the right is a floral cotton print designed and produced by William Morris, a famous poet and artist of 19th century Britain. Now in this figure 6, a Morris cotton print, 19th century England. This print was developed by William Morris, and William Morris के ही नेम से उनको इस प्रिंट को नेम दिया है Morris print. तो हमने देखा कि एक जो प्रिंट है इंडियन वीवर ने बनाया है, इंडियन आर्टिस्ट ने बनाया है, और एक प्रिंट जो है कॉटन प्रिंट जो है वो यूरोपियन ने बनाया है, विलियम मॉरिस ने बनाया है. ठीक है. तो दोनों में एक चीज बहुत कॉमन है, दोनों ही प्रिंट्स में बोथ यूज अ रिच ब्लू कलर. दोनों ही प्रिंट काफी डिफरेंट है, पर दोनों ही प्रिंट्स में क्या है, रिच ब्लू कलर का यूज किया गया है, कॉमनली कॉल्ड इंडिगो. इसी ब्लू कलर को, इस रिच ब्लू कलर को हम इंडिगो बोलते हैं. सो डू यू नो हाउ दिस कलर वाज प्रोड्यूस्ड? The blue that you see in these prints was produced from a plant called indigo. ये जो इन क्लोथ्स में जो ब्लू कलर यूज किया गया है वो इंडिगो प्लांट से जो है प्रोड्यूस हुआ है ये कलर. इट इज लाइकली दैट द ब्लू डाई यूज्ड इन द मॉरिस प्रिंट इन 19th century Britain was manufactured from indigo plants cultivated in India. इंडिया में जो इंडिगो प्लांट्स कल्टीवेट किए गए थे, ग्रो किए गए थे, उसी इंडिगो प्लांट से ये मॉरिस प्रिंट का जो ये ब्लू कलर है वो यूज किया गया है. फॉर इंडिया वाज द बिगेस्ट सप्लायर of indigo in the world at that time, and at that time India जो था वर्ल्ड का सबसे biggest supplier था इंडिगो का. Okay, so now why the demand for Indian indigo? इंडियन इंडिगो की ही डिमांड क्यों? वर्ल्ड में और भी तो कंट्रीज हैं जहाँ पे इंडिगो डेवलप होता है, ग्रो होता है, तो इंडियन इंडिगो को इतना क्यों डिमांड कर रहे थे लोग? So the indigo plant grows primarily in the tropics. As you all know, tropics, India is a tropical country. एक tropical country है इंडिया. ठीक है. यहाँ पे देखिए एक ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया के सेंटर से क्रॉस करती है, तो जो नॉर्थ रीजन है वो सब ट्रॉपिक रीजन आ जाएगा, और जो साउथ रीजन है वो ट्रॉपिक रीजन आ जाएगा. तो इंडिगो जो है आपके ट्रॉपिकल रीजन में ट्रॉपिकल रीजन में बहुत अच्छे से ग्रो करता है. So by the 13th century, Indian indigo was being used by cloth manufacturers in Italy, France and Britain to dye cloth. Italy, France और ब्रिटेन में 13th century से जो मैन्युफैक्चरर थे वो क्या कर रहे थे, इंडियन इंडिगो का यूज कर रहे थे. However, only small amounts of Indian indigo reached the European market, and its price was very high. European cloth manufacturers therefore had to depend on another plant called woad to make violet and blue dyes. Being a plant of the temperate zones, woad was more easily available in Europe. It was grown in northern Italy, southern France, and in parts of Germany and Britain. Worried by the competition, their governments to ban the import of indigo. So now इंडियन इंडिगो जो है बहुत ही मतलब यूरोपियन मार्केट में ज्यादा पहुंच नहीं पाती थी, एज उसकी प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई थी, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा थी इंडियन इंडिगो की, क्योंकि इंडियन इंडिगो प्रोड्यूस अ वेरी रिच एंड वेरी फाइन कलर एंड वेरी स्ट्रॉन्ग कलर यू कैन से, एंड यूरोपियन मैन्युफैक्चरर्स डिमांडेड दिस इंडियन इंडिगो.
especially most of the manufacturers, especially European cloth manufacturer depends on the another plant, क्योंकि जो इंडिया से एक्सपोर्ट होता था इंडिगो वो बहुत ही कम होता था, और तो यूरोपियन मार्केट्स में जो डिमांड थी वो इतनी फुलफिल नहीं हो पाती थी इंडिगो की, तो वो एक दूसरे प्लांट पे डिपेंड करते थे। उस प्लांट का नेम है वोड। वोड भी ब्लू कलर जो है, वायलेट कलर ब्लू कलर की डाई बनाता है, कलर डेवलप करता है, प्रोड्यूस करता है। वोड इज अ टेम्परेट जोन, वोड इज अ टेम्परेट प्लांट, ठीक है, टेम्परेट क्लोथ, टेम्परेट जोन्स में, टेम्परेट आपके यू कैन से टेम्परेट जोन्स में जो है काफी अच्छा ग्रो करता है। तो वोड जो है इटली, सदर्न फ्रांस, जर्मनी के कुछ पार्ट्स में, ब्रिटेन में ग्रो करता था। तो वो लोग काफी मतलब कि वो जो मैन्युफैक्चरर्स थे वो काफी कंपटीशन के डर में, दे वर सो वरिड बाय द कंपटीशन फ्रॉम इंडिगो। तो उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट को बोला कि आप जो है जो वोड प्रोड्यूसर्स थे वो गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर रहे थे, दे वर प्रेशराइजिंग गवर्नमेंट टू बैन द इंपोर्ट ऑफ इंडिगो, कि आप इंपोर्ट इंडिगो को इंपोर्ट करना बंद कर दें, क्योंकि ऑब्वियसली कंपटीशन है तो उनका मार्केट नहीं चलेगा, सब इंडिगो को ही डिमांड करेंगे। इंडिगो इतना अच्छा प्लांट, मतलब इतना अच्छा कलर प्रोड्यूस कर रहा है। तो so cloth dyers however preferred indigo as a dye, obviously quality, सबको क्वालिटी चाहिए, और कलर इंडिगो का कलर भी जो है कितना फाइन कलर दे रहा था, इंडिगो का कलर जो है वो पेल भी नहीं होता था। सो इंडिगो प्रोड्यूस अ रिच ब्लू कलर whereas the dye from wood was pale and dull. By the 17th century, European cloth producers persuaded their government to relax the ban on indigo import. The French began cultivating indigo in Domingue in the Caribbean islands and the Portuguese in Brazil. The English in Jamaica and the Spanish in Venezuela. Indigo plantation also came up in many parts of North America. So the cloth dyers, they preferred indigo obviously for so obvious reason, because indigo produced a very rich and very fine color and wood produced a very dull and pale color. So by the 17th century, European cloth manufacturers, they requested their government to relax the ban on indigo, and finally they relaxed it. And even French started cultivating indigo. फ्रेंच की एक कॉलोनी थी सेंट डोमिनिक, जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना रखी थी ना, वैसे ही यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज ने अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग प्लेसेस को क्या कर रखा था, अपनी कॉलोनी बना रखी थी। तो सेंट डोमिंगो, कैरिबियन आइलैंड में सेंट डोमिंगो को भी फ्रेंच ने क्या कर रखा था, अपनी कॉलोनी बना रखी थी, और उस कॉलोनी में वो क्या कर रहे थे, उस प्लेस में वो इंडिगो को डेवलप कर रहे थे। ब्राजील में पोर्टुगीज जो थे क्या कर रहे थे, वो ग्रो कर रहे थे इंडिगो को। जमाइका, ब्रिटिशर्स, इंग्लिश जो टर्म आता है, इंग्लिश यूज किया जाता है ब्रिटिशर्स के लिए, तो इंग्लिश ब्रिटिशर्स जमाइका में प्रोड्यूस कर रहे थे, वेनेजुएला में स्पेनिश प्रोड्यूस कर रहे थे। तो इंडिगो प्लांटेशंस जो है आल्सो केम अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के भी कुछ पार्ट्स में इंडिगो प्लांटेशन काफी मतलब सामने आने लग गया था। काफी लोग प्लांटेशंस, मतलब प्लांटेशंस का मतलब क्या होता है, प्लांटेशन इट मींस अ लार्ज फार्म ऑपरेटेड बाय अ प्लांटर employing various forms of forced labor. Plantations are also associated with the production of coffee, sugarcane, tobacco, tea and cotton. Actually plantation क्या होता है, it is a type of farming where a large farm, very big or very large farm प्रोड्यूस्ड ओनली सिंगल क्रॉप, एक ही क्रॉप को ग्रो करते हैं। जैसे बहुत बड़ा लैंड है, बहुत बड़ा लैंड है और उसमें क्या कर रहे हैं, वो खाली इंडिगो को ही ग्रो कर रहे हैं। और स्पेशली उस टाइम पे क्या होता था, प्लांटेशन में जो लेबर्स होते थे उनको फोर्सफुली क्या करवाया जाता था, उनसे काम करवाया जाता था। उनको प्रॉपर सैलरी, वेजेस नहीं मिलती थी, उनको अपने कंट्री में या फिर अपने गाँव में भेजा जाता था, उन्हें बहुत ही डोमिनेट करके रखा जाता था और उनसे फोर्सफुली काम करवाया जाता था। प्लांटेशन में नॉर्मली क्या होता है, एक बहुत ही बड़ा लैंड होता है जिसमें एक सिंगल टाइप की क्रॉप को ग्रो किया जाता है। और प्लांटेशन फार्मिंग में मेन उनका जो मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट अर्निंग का, कि वो दे वांटेड टू अर्न प्रॉफिट। दोज
anybody who wants anybody who do plantation, they want to earn more and more profits. Okay, so now indigo plantation North America में भी indigo plantation आ चुका था. So by the end of the 18th century, the demand for Indian indigo grew further. Britain began to industrialize and its cotton production expanded dramatically, creating an enormous new demand for cloth dyes. While the demand for indigo increased, its existing supplies from the West Indies and America collapsed for a variety of reasons. Obviously, between 1783 and 1789, the production of indigo in the world fell by half. Cloth dyers in Britain now desperately looked for new sources of indigo supply. So, from where could this indigo be produced now? So by the end of the 18th century, जो इंडियन इंडिगो है उसकी डिमांड जो है क्या होने लगी थी, बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई थी. Why? Because Britain began to industrialize. इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, कॉटन प्रोडक्शन बहुत, क्योंकि मशीनरीज आ चुकी थी तो कॉटन प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा जो है एक्सपेंड होने लग गया था. क्लोथ डाइज की बहुत ज्यादा डिमांड आने लग गई थी. So while the demand for indigo increased, its existing supplies from the, उसी टाइम पे क्या हुआ, इंडिगो की सप्लाई भी जो है, इंडिगो की एक तो डिमांड ग्रू बढ़ रही थी और उनकी जो सप्लाई थी, इंडिगो की सप्लाई वेस्ट इंडीज और अमेरिका ने क्या कर दी थी, वो धीरे धीरे कोलैप्स हो रही थी. वो कुछ ऐसे रीजंस थे उस टाइम पे. अमेरिका न्यूली यू कैन से कि इंडिपेंडेंट भी हुआ था अमेरिका, और वेस्ट इंडीज भी. बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से फिर वो इंडिगो को क्या कर रहे थे, इंडिगो को ग्रो नहीं कर रहे थे और इंडिगो की डिमांड धीरे धीरे कम होने लग गई. तो 1783 से 1789 तक जो प्रोडक्शन था इंडिगो का, 1784 में आई थिंक 1783 और 1784 में जो है आपका अमेरिका इंडिपेंडेंट हुआ था. हाँ, और अमेरिका ने फिर क्या किया था, इस धीरे धीरे इंडिगो प्लांटेशन को कम कर दिया था. तो 1783 and 1789 the production of indigo in the world fell by half. जैसे अगर सपोज 100 kgs उस टाइम पे हो रहा था, तो अब 1783 से 1789 के बीच में ओनली 50 kgs तक का ही इंडिगो प्रोड्यूस हो रहा था और इंडिगो की डिमांड जो है पहले से और ज्यादा बढ़ चुकी थी. अब दूसरे सोर्सेज जो हैं, ब्रिटिशर्स स्पेशली देख रहे थे कि हमें उन्हें कहीं से तो इंडिगो मिल जाए. सो ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया. अब क्या हुआ, ब्रिटेन जो है ब्रिटेन ऑब्वियसली इंडिया को कॉलोनाइज कर रखा था, तो इंडिया में वो देख रहा था कि हमें वहां से इंडिगो मिल जाए. सो फेस्ड विद द राइजिंग डिमांड फॉर इंडिगो इन यूरोप, द कंपनी इन इंडिया लुक्ड फॉर वेज टू एक्सपैंड द एरियाज अंडर इंडिगो कल्टिवेशन. दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर द लैंड्स and the areas where they can grow indigo, they can expand the indigo cultivation. Okay, so now from the last decades of the 18th century, indigo cultivation in Bengal expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market. In 1788 only, about 30% of the indigo imported into the Britain from first from India, and by 1810 the proportion had gone up to 895%. So from the last decades of the 18th century, indigo cultivation बंगाल में बहुत ज्यादा एक्सपेंड होने लग गया था. उसी टाइम पे 1799 में ही आपको पता है टीपू सुल्तान की भी डेथ हो गई थी, और फिर धीरे धीरे वहां पे उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी बक्सर किया और उसमें उनकी ब्रिटिशर्स की क्या हुई, विक्ट्री हुई. तो उन्होंने इंडिगो प्लांटेशन भी जो है धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था, और बंगाल में उन्होंने सबसे पहले बंगाल में ही इंडिगो प्लांटेशन किया, और बंगाल का जो इंडिगो था वो काफी डोमिनेटिंग था. ठीक है, वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट कर रहा था, मतलब सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा था और क्वालिटेटिव इंडिगो प्रोड्यूस कर रहा था. सो 1788 में जो बंगाल इंडिगो का कंट्रीब्यूशन था 30% था. 30% जो इंडिगो ब्रिटेन में जा रहा था वो कहाँ से इंपोर्ट हो रहा था, वो इंडिया से इंपोर्ट हो रहा था. और वही देखिए 20 years में ही बाय 1810 जो प्रपोर्शन है had gone up to 95%. 95% जो इंडिगो है ब्रिटेन में वो इंडिया से जाने लगा.
So as the indigo trade grew, commercial agents and officials of the company began investing in indigo production. Obviously Britishers they were money minded, तो इंडिगो ट्रेड जैसे जैसे धीरे धीरे स्टार्ट होने लग गया था, तो जितने भी कमर्शियल एजेंट्स थे, कमर्शियल मतलब कमर्शियल से आप ये समझ लीजिए दोज पर्सन्स हु वांटेड टू मेक प्रॉफिट्स, तो जितने भी कमर्शियल एजेंट्स थे या फिर ऑफिशियल ऑफिसर्स थे, उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, कंपनी के उन्होंने इंडिगो प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया. सो ओवर द इयर्स मेनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस. Attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and became planters. Those who had no money to produce indigo could get loans from the company and the banks that were coming up at that time. So now इंडिगो ट्रेड जो था धीरे धीरे ग्रो कर रहा था, तो कमर्शियल एजेंट्स भी क्या कर रहे थे, they shifted to India and they started investing in indigo production. Many Scotsmen, many Englishmen, because because of the high profits they started contributing this. Because of the high profits they started investing in the Indian plantation, especially indigo plantation. And जिसके पास पैसा नहीं था, those who had no money, those who had no money to produce indigo, they get loans from the company and banks, and जब भी उनका प्रोडक्शन होता था वो उसको फिर से फुलफिल कर देते थे, उसको पे आउट कर देते थे. ठीक है. So now just look at this picture. This is the picture. Just look at this picture. Figure 7. The slave revolt in Saint Domingue, August 1791. Painting by January Shodolsky. So now slave revolt 17, मैंने आपको बताया था ना कि वेस्ट इंडीज अमेरिका में काफी जो इंडिगो प्रोडक्शन है वो काफी कम हो चुका था, तो वहां पे भी जो लेबर्स जो थे, वहां की पॉपुलेशन कम थी, तो वो लेबर्स जो है क्या करते थे, गुलाम लेकर आते थे, स्लेव्स लेकर आते थे. इन योर हायर क्लासेस यू विल रीड मोर अबाउट द स्लेव ट्रेड. ठीक है. तो स्लेव रिवॉल्ट हुआ 1791 में, सैन डोमिंग्यू में हुआ था. और उस टाइम पे देखिए क्या हुआ था. इन द 18th century French planters produced indigo and sugar in the French colony at Saint Domingo in the Caribbean islands. The African slaves who worked on the plantation rose in rebellion in 1791, burning the plantation and killing their rich planters. In 1792, France abolished slavery in the French colonies. These events led to the collapse of the indigo plantation on the Caribbean island. उसी टाइम पे 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हुआ था, तो obviously so many things were going on. So at that time French planters जो सैन डोमिंगो कैरिबियन आइलैंड में शुगर और इंडिगो को प्रोड्यूस कर रहे थे, तो वहाँ के जो स्लेव्स थे अफ्रीकन स्लेव्स थे. एंड आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, तो अफ्रीकन स्लेव्स क्या कर रहे थे, जो प्लांटेशंस में वर्क कर रहे थे, उन्होंने रिबेल किया, प्रोटेस्ट किया 1791 में, और प्लांटेशंस को, वहां की जो प्लांटेशंस थी, जो खेत थे, उनको जला दिया, जितने भी रिच प्लांटर्स थे उनको मार दिया. और फिर 1792 में फ्रांस ने क्या किया, स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया. उन्होंने बोला कि हम अब स्लेव्स नहीं लेकर आएंगे और स्लेव से वर्क नहीं करवाएंगे. सो इस इवेंट से, दीज इवेंट्स लेड टू द कोलैप्स ऑफ इंडिगो प्लांटेशन ऑन द कैरिबियन आइलैंड. इसी वजह से क्या हुआ था, इंडिगो प्लांटेशन जो है वो कोलैप्स हो चुका था, उसमें गिरावट आ चुकी थी. हमने यहाँ पे पढ़ा था ना लास्ट पेज 31 में कि ब्रिटेन में तो उसकी डिमांड बढ़ रही थी, बट वेस्ट इंडीज और अफ्रीका वगैरह, अमेरिका वगैरह में इंडिगो का जो प्रोडक्शन था वो कोलैप्स हो चुका था. सो दीज वर सम ऑफ द रीजंस. So class, this is all about today. Okay. In our next class, we will talk about how was indigo cultivated and the problem associated with the niche cultivation. Niche cultivation, niche means self. ठीक है, स्वयं. तो niche cultivation है. We will talk about it tomorrow and the problem associated with it हम कल पढ़ते हैं. ठीक है. चलो, bye bye. Take care, class.